Good morning, student. I am audible to all of you. Good morning, sir. Good morning. I am audible to all of you. Yes, sir. Okay. And my screen is shared and visible to you all of you. Yes, sir. Yes. And so, in previous lecture, I have discussed about some aspects about operating system, and you can say that that is the structure of operating system. Okay. So there are various type of operating system structure. Basically, it is structure of operating system is designed according to their characteristics. You can say, okay. So, like the operating system have the capability to execute only one process at a time. It have the capability to handle only one user. It have the capability to uh, execute more than one program, or it is able to increase the parallelism. Okay, parallelism means here that a operating system or computer system may execute more than one program simultaneously. Means at a time more than one process are executing parallelly, concurrently. Okay, but in uniprocessor system, what do you feel? There are only one processor. Okay, and having only one processor, it have the limitation, you can say, that it is able to execute only one process at a time. Okay, but if you want to execute more than one process, then what you will do? You have to design some different type. So whether things or process are in a execution in a parallel manner, or exact in parallel manner, or if it is not possible to execute all the process in a parallel manner, if it is possible that in a virtual manner. Okay. Okay. So based on this, the concept comes multi-program, where a user feels that more than one program is executing by the computer system, but really what happened? Only one process at a time is executed. How do you feel that more than one process are executed by operating system? Because there are multiple programs are stored in RAM, and the CPU have the chance. If you have the liability, not liability, you can say, but if you have the chance, or you can say that it executes any one of the program, okay, or all the programs by by dividing its clock cycle to all these programs. Okay, clear? So this is called multi-programming system. तो clock cycle को क्या करते हैं? A computer system, a processor divides its called clock cycle into the number of programs which is stored in the RAM. Okay. तो एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि जब everything whatever you are going to execute must be stored in secondary memory. Okay, अगर आपको गाना सुनना है तो क्या होगा? You must have the application which is used for running any music application. So, firstly, second thing is that you must have a file where songs are stored. Clear? But
होगा क्या, a computer system execute only that program which is stored in RAM. तो क्या होगा, you have to fetch program from from secondary memory to RAM. Okay. If you are storing more than one program, it means now that if you have a chance to execute more than one program. लेकिन क्या होगा, प्रोसेसर एक है तो at a time it is able to execute only one program. Okay. तो वो क्या करेगा, अपने क्लॉक साइकिल को डिवाइड कर देगा. तो अब क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं क्लॉक साइकिल 10 सेकंड का है तो एक प्रोग्राम को 2 सेकंड, तीसरे को 3 सेकंड एंड सो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों में मल्टीटास्किंग में इन दोनों में क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो फ्रीक्वेंटली स्विच करता है. क्लियर है. और जितना स्विच करेगा उतने नंबर ऑफ प्रोग्राम. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक लिमिटेशन है. एंड व्हाट इज द लिमिटेशन, दैट इट switch all the program within the clock cycle. Clear है. But in multitasking, if you have the capability to execute the same program within a cycle. Okay. जैसे क्या है कि अगर आपके पास P1, P2, P3, P4, P5 तक आपके पास प्रोग्राम्स हैं जो स्टोर्ड हैं किसमें, रैम में. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि P1 से लेकर के P5 तक आप एग्जीक्यूट कराएं. लेकिन मल्टीटास्किंग में यू हैव अ चांस दैट यू कैन एग्जीक्यूट P1 ट्वाइस, P2 ट्वाइस, P3 ट्वाइस. कैसे कर लोगे, बाय डिवाइडिंग द टाइम इनटू वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. ठीक है. मल्टी प्रोग्रामिंग में ज्यादा ड्यूरेशन है, मल्टीटास्किंग में यू हैव द कैपेबिलिटी टू डिसाइड द टाइम क्वांटम वेरी लेस. ओके. जैसे आप 1 सेकंड का लक्ष्य रख रहे हो, ठीक है, 10 सेकंड का आपका क्लॉक साइकिल है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 अगर प्रोग्राम है आपके पास तो 5 अगर हो गए 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड आपके पास ही बचा, तो यू कैन रिपीट द प्रोग्राम. ओके. क्लियर है. तो ये तो हमने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग बताया था. मल्टी प्रोसेसिंग का हमने कुछ आपको आइडिया दिया. ठीक है. तो अब आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग. तो मल्टी प्रोसेसिंग में हमने आपको बताया था कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग व्हाट हैपन, it gives a parallelism but it gives a virtual parallelism. Means you feel that lot of programs are executing at the same time, but actually only one program is executing at a time. Okay. So in multiprocessing, what it does, it uses more than one processor. अगर आप क्या करते हो, एक कंप्यूटर सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेसर अगर लगा देते हो तो क्या होगा, 2 प्रोसेस एट ए टाइम. ठीक है. एट ए टाइम, मैं बार बार बता रहा हूँ, एट ए टाइम आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक. मोर देन वन प्रोसेस. लेकिन क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम पे एक ही होगा, लेकिन क्लॉक साइकिल में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए यू फील दैट ऑल प्रोग्राम्स आर रनिंग कॉन्करेंटली. But that gives the virtual aspect, and multiprocessing gives the true aspect of parallelism. Okay. So multiprocessing, if a system has a more than one processor, it is called multiprocessor or multiprocessor. या आप कह सकते हो, if a computer system has more than one processor, then it is called multiprocessor system. Or a computer having the capability of processing more than one process, it is called multiprocessor. So multiprocessor or multiprocessing have 2 type of design. First one is symmetric multiprocessor system, and second one is asymmetric multiprocessor. As the name suggests, that symmetric multiprocessing means a multiprocessor, definitely it has more than one processor. If has the asymmetric architecture, then it is called symmetric multiprocessor. Means कैसे आप पहचानोगे कि इट इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक. क्लियर है.
तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे ऑल प्रोसेसर शेयरिंग सेम मेमोरी। ओके, ऑल प्रोसेसर शेयरिंग सेम मेमोरी। ओके, तो ये क्या कहलाता है हमारा सिमेट्रिक मल्टीप्लेक्सर। तो अगर आप देख लो यहाँ पे लिखा कैसे, सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर शेयर ए कॉमन मेमोरी, इट मे हैव each processor have its own cache memory, but RAM, main memory means RAM is common to all processors. Okay, so it is called symmetric multiprocessor. Sometimes it is also called UMA. UMA, uniform memory access. It is also called uniform memory access. Clear है? Why it is called UMA, uniform memory access? Because all the processor have the accessibility of main memory uniform. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेस करेगा, मतलब जितना टाइम एक प्रोसेसर को मिलेगा उतना दूसरे को, एक टाइम पे एक ही प्रोसेसर, या अगर आपने ब्लॉक्स बना रखे हैं तो शेयर करेगा। तो मतलब क्या है कि एड्रेस आर सेम फॉर ईच प्रोसेसर, द एड्रेस ऑफ मेमोरी इज सेम। ओके, so that's why it is called symmetric multiprocessor system or uniform memory access system. Okay, तो इसमें क्या होगा कि the operating system treats all the processor equally. No processor have the extra privilege to work. Okay, and all processors share the common memory. Next आते हैं asymmetric multiprocessor. As its name suggests, asymmetric multiprocessor, it means that it have a asymmetric structure. Means that I think the figure is wrong. In asymmetric multiprocessor, all the processor have its private memory. Okay, no, the figure is right. Okay, all the processor have its private memory. Okay, मतलब ये कैश की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है रैम की बात। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, जैसे इसमें देखो क्या है, इसमें क्या था कि द कैश आर assigned to each processor, each individual cache. Okay, individual cache are assigned to individual processor, but in that you are seeing that a private memory is attached to each processor. It means that if any processor wants to communicate or wants to access, so it have its own RAM कॉमन। इसके अलावा क्या होता है कि एक कॉमन मेमोरी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि इन फ्यूचर या क्या कहते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी से आप डाटा कॉमन मेमोरी में डाल दो, एंड whatever the work assigned to the processor according to data or operand required for that particular processor for executing any particular process, वो क्या होगा उसकी मेमोरी में स्टोर होता है, जस्ट लाइक कैश। लेकिन कैश का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है रैम का अलग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कैश भी होगा, इस प्रोसेसर है इस फोन का, बट प्राइवेट मेमोरी होती है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। क्लियर है? तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम have multiprocessor working in parallel that share the computer clock memory bus peripheral devices. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, it is a extension of symmetric multiprocessor. Okay, इसमें क्या होगा, बट डिफरेंस क्या है कि सारे प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी होती है। That's why it is called NUMA, NUMA. Okay, non-uniform memory access. Non-uniform memory access, it means that as all the processor have its own memory, so accessing of RAM is
नॉट यू कैन से डिवाइड नहीं होता है कि एक ही एड्रेस देना है। इसमें क्या है कि हर एक रैम का अपना एड्रेस है, ठीक, क्लियर है, और वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेस होगा, मतलब कि कोई भी प्रोसेसर कभी भी डाटा ले सकता है, क्लियर है, वो एक्सेसिंग जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, क्लियर है। और एक चीज और होता है यूएमए में कि मतलब यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है, तो उसमें एड्रेस क्या है कि जब भी क्या होगा ऑपरेंड उसको लेना होगा, इट हैव ए कॉमन एड्रेस। इसमें क्या है कि आपको प्रोसेसर को जब आप एग्जीक्यूट करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेसर को बताएगा, ठीक है, कि आपका जो रैम है वो ये एड्रेस, ठीक है, तो हर एक रैम का अपना इंडिविजुअल एड्रेस, ठीक, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, या जिसे हम क्या कहते हैं, नूमा कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। नाउ कम टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर। तो अब देखो क्या है, इन एसिमेट्रिक ऑल प्रोसेसर हैव a common memory. In symmetric multiprocessor, all processor have asymmetric. In asymmetric, all processor have its own memory. तो होगा क्या कि जो प्रोसेसर हैं all in symmetric all processor are treated equally, but in asymmetric all processor are not treated equally. Clear है? Task of operating system are done by master processor. Task of operating system are done by individual processor. अब देखो होता क्या है कि अगर आप क्लास में, ठीक है, जैसे क्लास का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक है, मतलब वो क्या है कि सब लोग कोई एक कॉपी पेन नहीं शेयर करते हैं, सबके पास अपनी कॉपी है, सबके पास अपना बैग है, सबके पास अपनी बॉटल है, ऑल थिंग्स आर देयर, मींस ऑल स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए, अगर एक टीचर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, लेकिन अगर एक बेसिक उस पे जाएं, देन ऑल स्टूडेंट्स आर और नॉट यूनिफॉर्म, दे आर नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो अब क्या है कि हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक में कि सारे प्रोसेसर एक ही रैम के पास जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे कोई कंट्रोलिंग के लिए नहीं है, उनको मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक, क्लियर है। लेकिन क्या है कि जैसे अगर हम कह दें कि आपको मालूम है कि आपको 402 में बैठना है, आप सारे के सारे बच्चे गए 402 में बैठ गए, लेकिन अब हम अगर ओपन इलेक्टिव में क्या है, ठीक है, कई सारे बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो उसमें क्या है कि यू हैव टू गिव द एड्रेस कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो समटाइम्स इट रिक्वायर्स फॉर कंट्रोलिंग। ओके, तो एक क्या होता है, हम लोग एक मास्टर प्रोसेसर यूज करते हैं, ठीक, क्लियर है, तो कंट्रोल, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है सिमेट्रिक में कोई जरूरत नहीं है, ठीक, इसमें क्या होता है एक मास्टर प्रोसेसर होता है जो सबको बताता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे सिमेट्रिक में क्या है कि रैम पे जाना ही जाना है, सबके पास अपनी रैम है, तो पता चला कि जो जिसका मन है वो अपना एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। इन asymmetric no communication between processor as they are controlled by master processor, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें क्या है, ऑल प्रोसेसर कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेसर बाय शेयर्ड मेमोरी। अगर एक प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा, फर्स्टली जो भी इंफॉर्मेशन है इनपुट, जैसे ही देख लो मैं बताता हूँ, ये अगर क्या है कि प्रोसेसर 1 को कम्युनिकेट करना है, ठीक, प्रोसेसर 1 को कम्युनिकेट करना है प्रोसेसर 3 से, तो क्या होगा, प्रोसेसर 1 क्या करेगा, मेन मेमोरी को डाटा भेजेगा, फिर प्रोसेसर 3 क्या करेगा, वो मेन मेमोरी से वो डाटा ले लेगा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन बिटवीन एनी प्रोसेसर इज डन बाया मेन मेमोरी, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक में क्या है कि अब इसकी अपनी खुद की मेमोरी है, ठीक, क्लियर है। तो अब ये कम्युनिकेट करेगा किसके थ्रू, सिस्टम बस के थ्रू। ये क्या होगा, अपना डाटा सिस्टम बस पे डाल देगा, एड्रेस डाल देगा, द प्रोसेसर आईडी, देन
क्या होगा, द कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक में वो क्या होगा, मेन मेमोरी के थ्रू, ठीक। तो एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर में प्रोसेसर और मास्टर स्लेव, ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। इन सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर द प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम द रेडी क्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक में हमने आपको बताया कि देयर इज ए मास्टर क्यू, तो क्या होगा, मास्टर जो प्रोसेसर है दैट विल अलॉट द टास्क की दैट पर्टिकुलर टास्क इज फॉर दैट प्रोसेसर, another task is allotted to this, that is done by a master processor। लेकिन इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में क्या होगा कि जो प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है दैट आर पुट इनटू द रेडी क्यू, और क्या करेगा, जो प्रोसेसर है वो रेडी क्यू में जो पहला प्रोसेसर प्रोसेस होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिक में मास्टर प्रोसेसर विल अलॉट द टास्क, ओके। asymmetric multiprocessor system are cheaper, symmetric मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और कर से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, कॉस्टली। asymmetric multiprocessor system are easier to design, system symmetric multiprocessing system are complex to design, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है, ठीक। इसमें क्या है कि एक बार आपने थोड़ा सा, क्या होता है कि हमें क्या है कि सारे प्रोसेसर को क्या करना होता है, यू हैव टू कनेक्ट विद ए सिंगल मेमोरी। इसमें क्या है कि एक प्रोसेसर को के पास एक रैम है, उससे डायरेक्ट लिंक कराएं, तो ये इजियर टू डिजाइन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हमने आपको बता दिया था कल, ठीक है, कि मल्टी प्रोसेसिंग के क्या डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है कि ग्रेसफुल डिग्रेडेशन है, ठीक है। अगर कोई एक प्रोसेसर फेल होता है द सिस्टम अगेन कंटिन्यू टू वर्क इट्स, ओके। if there are more than one processor, definitely throughput of the system will increase। What is the throughput, number of operation executed per unit time। डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक मोर देन वन प्रोसेसर है तो आपको एक जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, ये मैंने कल बता दिया था। नाउ कम टू मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम, as its name suggests that multi user, it means that if more than one user is working on a system, then it is called multi user, or you can say that any system or operating system, any computer system or any operating system which have the capability to take the data from different users, then it is called multi-user, okay। So multi-user operating system is a computer operating system which allows multiple users to access the system with one operating system on, okay। एक ही operating system है और more than one user को वो handle कर सकते हैं। In the multi-user operating system, different users connected at a different terminal, we can access these users through the network, ठीक है। अब जैसे देखो क्या है, बैंकिंग सिस्टम का है, या क्या कहते हैं, you can take the example of railway reservation system where you are seeing कि a single application is running but more than one users are there। बैंकिंग में क्या है कि एक मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, और उससे सीधे ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांचेस हैं और कितने कंप्यूटर हैं, ऑल आर कनेक्टेड, कितने यूजर्स, ठीक। ये जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है बट more than one users are there, okay। So this type of system is called multi-user system। So there is a one main terminal, and with this main terminal there are multiple systems which are connected to this system, you can say that's a distributed, but in each system there are different users, okay, and each user has its own problem, okay। क्लियर है, जैसे ये यूजर है,
इसका एक पर्टिकुलर ब्रांच के कस्टमर्स को हैंडल करेगा, ये यूजर है ये किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच का हैंडल करेगा, बट दे आर रनिंग ऑन सेम एप्लीकेशन. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मल्टी यूजर सिस्टम. A multi-user system is one that can be used by more than one person at a time while running on a single machine. Different users access the machine running through the OS through network terminal. The OS can handle requests from user by taking turns among connector users. Okay. तो मीन्स क्या है कि जो एप्लीकेशन जो मेन है, ठीक है, वो इतना फ्रीक्वेंट, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोवैक्सीन के लिए क्या हुआ कि सर्वर क्रैश कर गया, ठीक है, कैसे हो गया कि मतलब एक टाइम पे जैसे ही ओपन हुआ फॉर रजिस्ट्रेशन, सबने क्या कर दिया अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है. तो एक एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस की भी क्या होती है, कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है, ठीक. अदरवाइज क्या होगा कि सारे के सारे अगर यूजर एक सिंगल इंस्टांस पे, एक सिंगल मोमेंट पे अगर सब के सब हिट करने लगे तो क्या होगा, सिस्टम क्रैश कर जाता है, डाउन, उसमें लोड बढ़ जाता है, वो हैंग हो जाएगा या इट विल नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंगली. क्लियर है. तो क्या होता है कि जहाँ पे मेन सर्वर है, जहाँ पे एप्लीकेशन स्टोर्ड है, इट मस्ट बी मोर कैपेबल टू हैंडल यूजर सिस्टम. मल्टी यूजर के और भी एग्जांपल्स देख सकते. देखो आज के टाइम पे क्या है कि वट एवर एप्लीकेशन यू आर सीइंग, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर सीइंग थ्रू वेब, थ्रू through any organization, what you are seeing that the things are distributed. Okay, multiple users are performing their tasks on a single application. Okay. Like banking application, like banking application, like railway reservation system, and so on. ठीक है, जैसे कोविन का रजिस्ट्रेशन है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है. तो क्या है कि इसके लिए क्या है कि आपको वो मल्टी यूजर सिस्टम इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो उसके लिए पूरी आपको एप्लीकेशन, और क्या है कि ऐसा नहीं है कि मल्टी यूजर, उसको इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है. इंटीग्रेट कहाँ करना है, एक 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 सिस्टम, एक एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना है, ठीक. क्लियर. तो इंटीग्रेशन आते हैं. नाउ कम टू मल्टी थ्रेडेड. अब देखो मल्टी थ्रेडेड क्या कहता है, थ्रेड का क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है. थ्रेड इज नथिंग बट से लाइट वेट प्रोसेस. पहले तो ये समझो कि प्रोसेस क्या है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको प्रोसेस होता क्या है, ठीक है. देखो कोई भी प्रोग्राम, ठीक, वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट. अगर क्या है कि वो क्या है कि इट इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी, एनी प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोग्राम. Okay, but if a user wants to perform any task, he has to open that particular program. Okay, it means that that particular program is now fetched from secondary memory to RAM. Okay, RAM में आ जाने के बाद भी क्या होगा ना, it is not ready to execute. Okay, तो क्या करेगा, प्रोसेसर pick that portion of the program from RAM and send to the cache, and so on the process is going. Okay. When that particular program is ready to execute, when that particular program is ready to execute, then it become process. Okay. बहुत बार ये पूछा जाता है, what is the difference between program and process. ठीक, तो what is the difference between program and process. Program which is in a passive state. तो होता क्या है कि हम लोगों के terminology में we are very much habitual that we always saying that कि program is not, process is ultimately process है. क्लियर है. प्रोग्राम क्या होता है, जो रैम में स्टोर्ड है या सेकेंडरी मेमोरी, when it is ready to execute.
either it is executing or ready to execute. It becomes process. The process is nothing but active state of the program. Clear है? तो अब देखो क्या है कि प्रोसेस क्लियर है. अब देखो क्या है, व्हाट इज थ्रेड. थ्रेड क्या है कि एक कोई प्रोग्राम, एक कोई प्रोसेस है विच इज एग्जीक्यूट. ठीक. अब उस प्रोसेस के, ठीक है, उस प्रोसेस के कई सारे वेरिएंट्स यू कैन से. ठीक. क्लियर है? कई सारे पार्ट्स कह सकते हैं. या एक कंप्लीट प्रोसेस तो ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल जैसे आप गाना सुनते. ठीक. जैसे हमने एक देखो इसमें एग्जाम्पल है, आप गाना सुनते. ठीक. तो सबसे पहले क्या है कि यू हैव टू ओपन द application for that particular music. Okay. Then there is another thing, you have to select the song. You are able to add new song. You can forward, you can backward, you can slow the music, you can raise the volume, you can slow the volume. Okay. Fast forward, lot of things are there within a process. Okay. And these activities which is occurring between a single process is called a thread. Okay. तो ये क्या कहलाता है हमारे थ्रेड. so that's why it is called lightweight process. Okay. एक प्रोसेस है, अगर देखा जाए इससे T1 OpenABLC T1 is a complete process. T2 is a complete process. एक प्रोसेस है, लेकिन एक ये जितने भी प्रोसेस हैं इससे सब प्रोसेस ऑफ ए सिंगल प्रोसेस. मतलब गाना सुनने एक, ठीक है, आपने ओपन किया तो एक ये प्रॉब्लम सेट है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज है. ठीक. क्लियर है? जैसे आप क्या सिंपल एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ. आप एक वेब पेज ओपन करते हैं, तो उस वेब पेज पे क्या हो रहा है कि आप जब ओपन करते हो तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट, तो एक ये कंप्लीट प्रोसेस है. क्लियर. लेकिन उसके अंदर क्या है, उसी वेब पेज पे एक एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है, उसी में कोई चीज पॉपअप भी हो रही है, आप उसी में कोई चीज टाइप भी कर रहे हो. ठीक. क्लियर है? तो आप देख रहे होगे, यू विल सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर रनिंग साइमल्टेनियसली. ठीक. तो अगर देखा जाए एक कंप्लीट प्रोसेस क्या है, योर वेब पेज. ओके. आपने एक ओपन किया वेब पेज, वो एक आपका, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, साइमल्टेनियसली चल रही है या वन बाय वन चल रही है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड lightweight process and this is called threads. So a thread is a basic unit of CPU utilization. Multi-thread execution model that allow a single process to have multiple code segments. तो एक प्रोसेस के अंदर जितने मॉड्यूल होते हैं या आप पूरा कोड डिजाइन करते हो, तो एक कोड का एरिया है कि that particular code is used for selecting a song. Okay. Then there is a segment of code. उसका क्या वर्क है? Its work is to play that particular song which is selected by T1 thread. Okay. मान लेते हैं जो पहले हमने T1 थ्रेड था जो हमने ओपन किया था या सॉन्ग को सिलेक्ट किया. ठीक. क्लियर. इसके बाद क्या है कि आपने वो गाना चल रहा था, ठीक है, उसी में हमने क्या किया, देयर इज ए कोड सेगमेंट व्हिच रेज द वॉल्यूम ऑफ योर स्पीकर. ओके. या स्लो डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर स्पीकर, एक ये भी कोड सेगमेंट. या हमने क्या किया, गाना हमने कहा कि अभी म्यूजिक बज रहा है, जब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, देयर इज ए कोड सेगमेंट. दीज कोड सेगमेंट्स आर कॉल्ड सब प्रोसेस और इससे लाइट वेट. ये ठीक. तो ये जो होते हैं कोड सेगमेंट दैट आर रनिंग कॉन्करेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस. देख लेना यहाँ पे कुछ चीज है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस. एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें हो रही है, कई सारे प्रोसेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट प्रोसेस मींस या सब प्रोसेस इज कॉल्ड लाइटवेट प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेड्स. ठीक है. तो होता है क्या ना कि आजकल देख रहे होगे कि इट्स ओके कि एक प्रोसेस है, एक यूनिक प्रोसेस है. ठीक. कोई दिक्कत नहीं. एक पर्टिकुलर जब आपने क्या है गाने के लिए आपने ओपन किया तो एक उसके पास कंप्लीट प्रोसेस गया. ठीक. बट
that particular processor have the capability to execute the sub process simultaneously or not. ठीक है, तो क्या होता है ये थ्रेड मतलब मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आप लोग देखिए कि आजकल जो कंप्यूटर सिस्टम खरीद रहे हैं कोर बताते हैं कि ये डुअल कोर है, ऑक्टा कोर है या क्वाड कोर है, इट्स ओके। बट इसके साथ एक चीज और बताते हैं कि ये 4 थ्रेड को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी है या 8 थ्रेड को कैपेबिलिटी। तो अगर देखा जाए तो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज करेगा, इफ देयर आर 4 देयर इज अ वन प्रोसेसर, देयर आर 4 कोर, ठीक है, एंड ईच कोर मतलब डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या हो गई 4 टाइम्स बढ़ गई क्योंकि देयर आर 4 कोर एंड ईच कोर हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट 2 थ्रेड्स। इट मींस डिग्री ऑफ मतलब कितने थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है, 8 थ्रेड। ओके, तो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या हो गई 2 टाइम्स और बढ़ गई, तो टोटल कितने हो गए 8 डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। इट मींस एट अ टाइम it can execute 8 instruction at a time, you can say, clear है? तो ये होता है क्या कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। तो होता क्या है कि विद इन ए प्रोसेस लॉट ऑफ सब प्रोसेस आर देयर। अगर देखा जाए तो इट्स ए कंप्लीट मतलब जो एक प्रोसेस की क्या होती है, प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा एक प्रोसेस की क्या होती है। कई सारी स्टेट होती है, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक, उनका स्टार्टिंग, उनका एंड, उनका टाइम पीरियड, ठीक, वो वेट कर रहा है या रनिंग स्टेट में है या टर्मिनेट है। तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक प्रोसेस के। वो अगर किसी एक प्रोसेस के अंदर कोई कोड सेगमेंट है उसके अंदर भी ये सारी चीजें हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा थ्रेड कहलाता है। क्लियर है? तो ऐसा करो कि 2 मिनट बचे हैं, सब लोग अटेंडेंस दे दो। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इट्स एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस टू मैनेज इट्स यूज बाय मोर देन वन यूजर एट अ टाइम to manage multiple requests by the same user without having to have multiple copies of the program। तो हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट थ्रेड इज नथिंग बट, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब हम सेकंड यूनिट में ही है थ्रेड का कॉन्सेप्ट, वी विल डिस्कस मोर अबाउट थ्रेड्स। ओके, मल्टी थ्रेड के एडवांटेज क्या होते हैं। थ्रेडेड क्या होता है कि ये क्या करता है, मिनिमाइज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। क्लियर है? कई सारे एक्टिविटीज हैं लेकिन क्या है विद इन द प्रोसेस है। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि क्या होता है कि प्रोसेसर को स्विच करना पड़ता है। इसमें क्या है कि विद इन द प्रोसेस है तो वो क्या है कि उनको स्विच करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दे कैन रन साइमल्टेनियसली। क्लियर है? यूज ऑफ थ्रेड प्रोवाइड्स कॉन्करेंसी विद इन ए प्रोसेस, ये ध्यान रखना, ठीक है, विद इन ए प्रोसेस। एक कॉन्करेंसी मतलब पैरेललिज्म, मतलब मोर देन वन प्रोसेस एक सेम टाइम पे वर्क कर। efficient communication, definitely communication is going to be, it is more economical to create and context switch threads. Threads allow utilization of multiprocessor architecture to great scale and efficiency। definitely multiprocessor क्या होता है, मल्टी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर थ्रेडिंग आपने अच्छे से करा रखी है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो आपका जो क्या कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर है वो और बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, टाइम हो रहा है, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। हमें लगता है आई होप कि एवरीवन हैज गिवन इट्स ओन अटेंडेंस। ओके, 48 participants are there, only 45 chats are there। तो एक बार ध्यान दे दो, अटेंडेंस दे दिया करो, नहीं तो चैट के बाद अगर जो प्रेजेंट होंगे वही प्रेजेंट होंगे।